Good afternoon, student. Today is my second video of accounting equation, and today I solve the questions of the accounting equation. First of all, start randomly. I select one of the question from the starting from the chapter of accounting equation. Earlier we have studied about the accounting equation, the one illustration in which you have clear related with the accounting equation, how the posting is there and how the transaction you should read and then post accordingly with the rule assets is equal to liabilities plus capital. Now putting these things in these questions and try to think that what type of entry is there and what are the things go in the asset side and then in the liabilities and capital. Then you finalize the things and you get the correct answer. Okay, now start. Now I start the third question from here from the book. Showing the accounting question on the basis of the following transaction and present a final balance sheet. मदन राठौर कमेंस अ बिजनेस. मदन राठौर एक आदमी था जिसने बिजनेस अपना चालू किया 35,000 रुपये लगा के बिजनेस पे. द इनिशियल अमाउंट ही इन्वेस्टेड इनटू द बिजनेस इन हिज बिजनेस 35,000. देन व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर दिस? Firstly, I manage my book and copy that you cannot having a problem in saying the question. What is the formula? Assets is equal to liabilities plus capital. Okay, now read the first transaction. Madan Rathore commences a business. Madan Rathore commences a business 35,000. He start a business with rupees 35,000. So we put cash under the head of the assets. First number. He started with a rupees 35,000 where he invested in his business. So the initial capital we signify with in the capital head 35,000. Now comes the second entry. Purchase goods on credit. Then he purchased goods on credit. फिर उसने उधार पे गुड्स खरीदा. ठीक है, ये नहीं बोला गया है किससे खरीदा, बस खरीदा. कोई एक्स एंड वाई आए होंगे जिनसे उन्होंने खरीदा होगा मार्केट से गुड्स. ठीक है, 7,000 का. तो परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट. गुड्स क्या है? आया. गुड्स से हम किसको सिग्निफाई करते हैं? स्टॉक. गुड्स कहीं भी रहेगा तो हम स्टॉक का हेड बनाएंगे, उसके अंदर गुड्स की वैल्यू को हम लिखेंगे. कितने का गुड्स था? 7,000. और किस पे खरीदा? क्रेडिट पे खरीदा, उधार पे खरीदा. यानी हम उसके क्या हुए? क्रेडिटर. हमको इन फ्यूचर उसको पैसे देना है तो लायबिलिटीज है हमारे लिए. एक क्रेडिटर का हेड बनाएंगे, उसके अंदर 7,000. देन फाइनलाइज. Each and every entry you do the finalization, then you at the end you will cannot all the entry you cannot add all the entry because this will
take some time, and also your transaction is wrong in somewhere. That's why one after by one all the transaction I will finalize, then you get a correct answer, and the difficulty of calculation is not there in is not there taken place in future. 35 cents, then finalizing it is new equation. What comes? 35,000 plus 7,000 greater 7,000 and capital 35,000. Now what is the third entry? Withdraw for private use. Private use in business terms it should be a drawing. जब हम प्राइवेट यूज़ के लिए बिजनेस से अपना पैसा निकालते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? ड्राइंग बोलते हैं. वो है 850 रुपीज़ का ड्राइंग हुआ. कितने का हुआ? 850 रुपीज़ का. तो पैसा बिजनेस से हमने निकाला कैश की फॉर्म में, तो ये कैश से 850 माइनस हुआ. जब 850 यहाँ माइनस हुआ तो 850 कैपिटल में भी माइनस होगा क्योंकि हमने बिजनेस से निकाला है. देन और कोई एंट्री है नहीं. इसके बाद फाइनलाइज करेंगे. 34150 plus 7,000 it is new equation comes. Then 7,000 then here comes 0, 5, 1, 4 and 3. Then comes fourth entry. Purchase goods for cash 5,000. गुड्स कितने का परचेज किया गया? 5,000 का. तो गुड्स आया, स्टॉक में कितना आया होगा? 5,000. और हमने उसको खरीदा किस पे? कैश पे था, तो कैश से ऑटोमेटिकली माइनस हो जाएगा. ठीक है. यहाँ पे आएगा 0, 5, 1, 9 and 2. Then after finalizing this 12,000, then 7,000, then 34150. Then this is new equation. Then fifth entry, paid wages. Wages, what amount? 150. 150 is the wages. Then wages should also minus from cash. It is no wages is outstanding, so that we deducted from the cash and from the capital. Capital also decreases with 150. Then new equation, $29,000 plus 12,000, 7,000, and here 34,000. Then sixth entry, this is new equation. What is the sixth entry? Paid to creditor. क्रेडिटर को हमने कितना दिया? हमने क्रेडिटर हमारे थे उसको हमने पेड कर दिया, तो 5,000 रुपीज़ हमने अपने क्रेडिटर को दिया. ठीक है. तो क्रेडिटर का कहाँ जाएगा? हमने अब पेमेंट किया तो 5,000
कैश से माइनस हुआ और 5,000 हमको जो उधारी देना था तो वो क्रेडिटर से माइनस हो जाएगा। फिर इसको फाइनलाइज कर देंगे। Here it is 24,000 and plus 12,000 and here 2,000 and 34,000। कोई एंट्री नहीं थी यहाँ पे इसलिए हमने ज़ीरो रखा। न्यू एंट्री ये आ गई। फिर 7th एंट्री क्या है, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, जिसकी कॉस्ट प्राइस कितनी थी 6,000। कॉस्ट प्राइस 6,000 थी, वह बेचा कितने पे 7,500 पे। तो सीधा सीधा 1,500 तो हमारा प्रॉफिट हो गया, ठीक है। और हमको पैसा मिला कितना 7,500। क्रेडिट पे था, उधार पे था, तो डेटर हमको क्रिएट करना है। एक डेटर हमको यानी इन फ्यूचर हमें पैसा उससे मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे कितने का आएगा 7,500। गुड्स कितने का गया 6,000। ब्रैकेट में ये इसलिए करते हैं क्योंकि ये माइनस है, इसको माइनस करना है, ये प्लस होगा। देन प्रॉफिट कितना हो गया 7,500 पे हमने इसको बेचा, तो प्रॉफिट कितने का हो गया 1,500 पे। देन फाइनलाइज करो, न्यू इक्वेशन आ जाएगी। प्लस माइनस 6,000 माइनस होगा, देन प्लस 500, देन 2,000, देन here minus 1,500, oh no sorry, plus 1,500, it is profit plus 0,0553 35,500. Then 8th equation, what the 8th equation is telling you, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कॉस्टिंग जिसकी 1,500 की थी 2,000 पे बेचा, तो सीधा सीधा हमको 500 रुपये तो प्रॉफिट पे हो गया, ठीक है। ये प्रॉफिट कैपिटल में ऐड हो जाएगा। और कितने का बेचा, कितने का गया गुड्स गया, ये कैश पे था, ये क्रेडिट पे तो था नहीं, तो सीधा सीधा 2,000 रुपये कैश में आ जाएगा। और गुड्स कितने का जाएगा 1,500 का, 500 का गुड्स था इसलिए 1,500 का गुड्स गया, 500 इधर आ गया प्रॉफिट पे। अब इसको हम फाइनलाइज करेंगे, यहाँ आ जाएगा 26,000, देन 7,500, देन 7,500, 2,000, here comes the liability, and then after adding the profit in capital, the final capital comes 36,000. Now 9th entry, this is a new equation. 9th entry, what the 9th entry tells you, purchase furniture, it is simple entry, purchase furniture 250, फर्नीचर परचेज, आगे कुछ नहीं, क्रेडिट कैश कुछ नहीं बताया गया तो क्या मानेंगे, कैश मानेंगे। देन यू अज्यूम दैट इट इज इन द ऑन द बेसिस ऑफ द कैश, तो फर्नीचर परचेज, फर्नीचर कितने का आया फर्नीचर आया, फर्नीचर का एक हेड पहले बनाएंगे, यहाँ पे एक और क्रिएट किया एसेट्स के नीचे फर्नीचर, ये कितने का था
250 कैश पे गया, 250 कैश से माइनस कर देंगे, फाइनलाइज, देन फाइनलाइजिंग कितना आया 25,750 प्लस 7,500, 7,500 प्लस 250, देन 2,000, then 36,000 comes. Now 10th entry, what the 10th entry tells you, received from debtor. debtor से आपको कितना मिला 7,500, जब debtor से आपको मिला 7,500 तो डेटर से मिला, तो कैश आया, ठीक है, कैश आया तो कैश में चला जाएगा 7,500 एंड डेटर से वही चीज़ माइनस हो जाएगी, डेटर के हेड से 7,000 माइनस हो जाएगी, ठीक है। फिर इसके बाद मैंने इसको फाइनलाइज किया और 33 250 7.5 डेटा क्रिएट था, डेटा से माइनस हुआ 0 हो गया, प्लस 250, देन 2,000, देन 36,000, ये एंट्री बनेंगी। फिर 11th एंट्री क्या है, अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल पे इंटरेस्ट मिला, एक बार मिला एक बार, हाँ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंट्री बिकॉज कैपिटल पे इंटरेस्ट मिला इंटरेस्ट मिला, तो इसकी सिंपल एंट्री है, एक बार 175 प्लस होगा और एक बार 175 माइनस होगा, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। चाहे इसको आप फाइनलाइज करोगे तो आंसर भी यही आएगा, 20 प्लस 7500 प्लस 0 250। आप दोनों साइड को फाइनलाइज करोगे तो एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल यहाँ पे आके बिल्कुल रहेगा, आप मिला सकते हो। क्वेश्चन जैसे कह रहा है कैश में हमारे पास 33,250, स्टॉक 4,500, फिर फर्नीचर 250, फिर क्रेडिटर 2,000, देन कैपिटल 36,000। Thank you class, and in next we try to find some new question that is very high in quality, or it is some more entries is there. You should understand those entry also, then you have completed your accounting question. Accounting question is the first chapter of class 11th, and you should understand this chapter because this chapter is related with your other chapters which will come in near future. Thanks.